Hello students, so today we are here with your date-wise preparation planner for your applied maths board exam which is on 8th March, right? तो अभी आपके पास 12 days हैं around, so you can easily prepare for it. So एक छोटा सा planner लेके आए हैं which you can follow and systematically you can do the work. तो चलिए we start with the planner. तो इसमें कुछ टिप्स हैं जो हम आपको देना चाहेंगे सो दैट यू कैन डू इट स्मूथली। पहली चीज़ PYQs जरूर करिए क्योंकि PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि PYQs से क्या होता है, यू विल हैव अ गुड आइडिया कि आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और जैसे आप सबको पता है इट्स अ न्यू इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट अराउंड 3-4 years बैक, सो आपके PYQs भी ज़्यादा नहीं हैं एंड यू विल हैव अ clear impression in your mind what type of questions are coming in the exam. So try to solve PYQs. So try to solve PYQs for all प्रीवियस ईयर्स CBSE सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर्स का मतलब जो बोर्ड हर साल एक सैम्पल पेपर रिलीज करता है उसके क्वेश्चन ज़रूर करिए। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप। Okay, and also solve CBSE board papers for the last 3-4 years, right? And if I would say कि everything is available on the channel also, all the previous year sample papers का detailed solution, all the PYQs for all the chapters and all the CBSE board paper solution also. And this is really going to work for you. It's a miracle. So do practice one sample paper every day if you can. But if you think you are not prepared, you can skip it and start doing the revision test for the chapters जो आपके prepared है. But please अपने आप को छोटे छोटे टेस्ट जरूर दीजिए every day. Now for this, apart from studying, हमारे पास कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे, so you will do it smoothly because the weather is changing and all. So have a rest for short durations at regular intervals. So if I'm saying rest, it doesn't mean go for the mobile phones and all. So it means complete rest. Calm your mind. You can meditate also in between for 5-10 minutes. This is not like that कि मैम ऐसे ही बोल रही है. It really works in mathematics. Have your meal on time. Liquid intake ज़्यादा रखिए अपना and be there on bed and have a sound sleep. No need to have a full night study and all. So while you do the chapter revision, so just check कि आप एक लिस्ट बना रहे हैं so that last day you can revise all those questions जो आपके लिए tricky हैं, थोड़ा you feel it's hot for you. Okay, so just go for that. Now if we start with, so today is 23rd, so 23rd 24th में you can cover algebra unit. So algebra unit में जो important है वो है matrices और determinants. So आपको definitions आनी चाहिए, MCQs के लिए important है. Algebraic operations, that is addition, multiplication should be clear. Then transpose of matrix और उसके related properties, inverse से related properties, minus, cofactors, then जो application है determinants का to find the area of triangle, then properties of determinants, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट्स है स्पेसिफिकली, दैट इज़ के आप कैसे कांस्टेंट लेते हैं एंड ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ का एक पूरा लिस्ट हमने दिया है। वो प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल थॉरो करिएगा, 100% उसमें से क्वेश्चन MCQ में आएगा, नहीं तो 2 मार्कर्स कैन ऑल्सो कम। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज इनवर्स पे देखिए क्वेश्चन, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात करें तो वो क्वेश्चन एवरी ईयर इज कमिंग फ्रॉम 3 मार्क 4 मार्क इधर 5 मार्क में। केस स्टडी भी बनता है हमारे पास इनवर्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड पे और क्रैमर्स रूल पे, राइट। सो ये तो करना कंपलसरी है ही, एडजॉइंट एंड इनवर्स, एंड इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक ऑल्सो, सो प्लीज़ वर्क ऑन दैट। और अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड है तो वर्ड प्रॉब्लम्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दैट। केस स्टडीज़ में आपको बहुत अच्छे एक्सपोजर मिलेगा। इसकी केस स्टडीज़ भी हमने बनाए हुए हैं, चैनल्स पे आप देख सकते हैं, नहीं तो आप जो भी बुक रेफ़र कर रहे हैं, ML अग्रवाल, ML भार्गव, RD शर्मा, यू कैन रेफर दैट ऑल्सो। लास्ट मिनट में डोंट चेंज एनीथिंग, जो आप पूरे साल करते आ रहे हैं, आप जिससे फेमिलियर हैं, प्लीज़ फॉलो दैट ऑल्सो, दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। ये नहीं कि एक ये बोल रहा है वो बोल रहा है, सो वी चेंज द लास्ट मिनट प्रिपरेशन, डोंट डू दैट। Now 25-26 में you can choose for the probability. So probability में as you know we have 4 types of distributions, random. So random का हमें मीन और वेरिएंस भी है और हमें random distribution टेबल बनाना आना चाहिए. Same it goes for binomial also. Then for binomial mean and variance is important. And then we have Poisson distribution, normal distribution. Please do case-based questions and word problems for normal distribution as well. Case-based questions आपको binomial पे बहुत अच्छे मिलेंगे, आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे भी आ रहे हैं। एंड डू रिमेंबर कि आपको फॉर्मूले अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको ये समझ में आता है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है और आप सिर्फ फॉर्मूला भी लिखते हैं, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं,
देन ऑल्सो यू स्कोर 50%। दैट इज अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 जरूर मिलेगा अगर आपने करेक्ट वैल्यूज किए हैं, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई किया है। अदरवाइज हाफ मार्क इज ऑलवेज देयर फॉर फॉर्मूला। और अगर ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है क्वेश्चन तो समटाइम्स यू हैव 1 मार्क ऑल्सो। सो प्लीज फॉलो दैट। सो 2 days यू कैन कीप फॉर दिस। इफ यू हैव टाइम यू कैन प्रैक्टिस सम अदर। और आप जिस टाइम पे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी टाइम पे आप इनके PYQs भी करिए। So that will really help you in knowing ki what type of questions are we going to practice. Okay. Now the next unit that you can take is inferential statistics. छोटा सा चैप्टर है, ओनली 5 मार्क्स इट कैरीज। वी हैव केप्ट इट फॉर दिस डे कि आपके जो पहले 2 दिन हैं अगर आप उसमें कुछ नहीं कर पाए हैं फर्स्ट 4 days में, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस। और जो चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा वीक है आप उसको इसके साथ क्लब कर सकते हैं, राइट? आगे भी जो आपके रह गए हैं। सो नाउ रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम योर क्लास 11th बुक। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें यहाँ पे कई बार ये निकालना पड़ता है। थ्योरी आप इस चैप्टर का ज़रूर पढ़िए बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर MCQ क्वेश्चंस। पॉपुलेशन साइज, सैम्पल साइज, सैम्पलिंग और उसके टाइप, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये सब MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी बेस्ड MCQs आर इम्पॉर्टेंट। पैरामीटर, स्टैटिस्टिक्स, इनमें क्या डिफरेंस है? स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस के 3 पॉइंट्स है हमारे पास, पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। डू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, राइट? आप इसको अगर आई वुड से जो CBSE का स्टडी मटेरियल है उससे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा दिया है, उसमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया है। उसका भी हमने एक वीडियो बना रखा है जिसमें हमने पूरा CBSE का डिस्कस किया है स्टडी मटेरियल फॉर दिस चैप्टर, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। दैन स्टैंडर्ड एरर, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये सब क्लियर होना चाहिए बिकॉज दे आर सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपको हर क्वेश्चन में लिखना ही होता है। देन हाउ टू राइट द हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, इट्स अगेन इंपॉर्टेंट थिंग एंड 100% उस पर क्वेश्चन आना है एग्जाम में। टी टेस्ट फॉर 1 सैम्पल एंड टी टेस्ट फॉर 2 सैम्पल्स, इनमें से एक में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए रिजेक्शन की और एक्सेप्टेंस की। सो वी हैव द वीडियो ऑन दिस ऑल्सो एंड डू प्रैक्टिस इट। अगेन फॉर्मूले के मार्क्स होंगे टी टेस्ट के, आप सब्सिट्यूट करिए। आप उसको फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं, आप उसको आगे सॉल्व नहीं करते हैं तो भी आपको कुछ मार्क्स तो मिलेंगे। सो अप्लाइड मैथ्स में 70% स्कोर करना इज नॉट अ बिग डील स्टूडेंट्स। 90, 100 इफ यू आर एमिंग, प्लीज फॉलो दीज स्टेप्स। और अगर आप ये अच्छे से कर लेंगे 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको 90% टू 100% के बीच में मिलेगा, राइट? आप कितना प्रैक्टिस कर पाते हैं, कितने क्वेश्चंस करते हैं, वो आपके ऊपर है। तो अगर आप स्कोर करना चाहते हैं 90% से 100% के बीच में, do follow these tips. Okay, so I've written very specifically for each and every topic that is to be done from the chapters. Okay, now MCQ type linear programming और time series दोनों ही छोटे chapters हैं, you can easily cover in a day. Linear programming में you have graphs and time series में you have small methods. So MCQ type questions again they are important because good conceptual knowledge और understanding चाहिए इसमें, right? So be thorough with the terms used in the chapters like slack variable क्या होता है, constraints, feasible region, objective functions, optimization, subject to constraints, बहुत सारे terms हैं। ये क्लियर नहीं होंगे तो आप MCQs भी नहीं कर पाएंगे, राइट? केस स्टडीज में ये सब पूछ सकते हैं। तो आपके जो पोर्शन में है वो 2 मेथड्स हैं, ग्राफिकल और आइसो कॉस्ट आइसो प्रॉफिट। बाउंडेड अनबाउंडेड दोनों फिजिकल रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर्मुलेशन है, वर्ड प्रॉब्लम्स को LPP की फॉर्म में कैसे फॉर्मुलेट करेंगे उसके क्वेश्चन 2 मार्क्स तक आते हैं। अगर उसका ग्राफ भी बनाना है देन इट गोज टू 5 मार्क्स। तो वो तो 100% है कि एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही। तो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी है थॉरोली फॉर बोथ बाउंडेड एंड अनबाउंडेड रीजन्स। थ्योरी फॉर टाइम सीरीज के लिए अगेन इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं टाइम सीरीज में। देन 3 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर मूविंग एवरेज और इसके ग्राफ की भी प्रैक्टिस करिएगा। 4 ईयर मूविंग एवरेज ऑल्सो कम्स। देन मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जो लास्ट मेथड है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, दिस हैज बीन कमिंग एवरी ईयर। थोड़ा लेंथी ज़रूर है बट अगेन टेबल होती है, फॉर्मूले होते हैं, सो मार्क्स स्कोर करना ईजी होता है। डोंट लीव इट ब्लैंक बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ऑफ लूजिंग ऑल 5 मार्क्स 4 मार्क्स एट वन स्ट्रेच। आप थोड़ा सा तो सॉल्व करिए, तो इसलिए फॉर्मूला बेस्ड बहुत है अप्लाइड मैथ्स, तो इसलिए फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस करिए, राइट? कॉन्सेप्ट्स ठीक है, लास्ट मोमेंट है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्विंग, आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, फॉर दैट आई एम सेइंग प्रैक्टिस एवरी डे। अगर आप लास्ट मोमेंट पे फिर छोड़ देंगे और एक दिन और छोड़ते हैं तो इट विल नॉट वर्क। सो प्लीज फॉलो दिस सीरीज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट।
Now the next is numbers, quantification and numerical application chapter, that is chapter 1, unit 1. उसमें बहुत छोटे छोटे topics हैं. It's a very interesting chapter students. Modulo arithmetic, congruence modulo, properties of addition and multiplication of modulo. These properties are very important to solve the questions. Allegations and mixtures, pipes and systems के word problems हैं, races and games, sports and streams, numerical inequalities. सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. हो सकता है आपका कोई टॉपिक वीक हो, आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, बट बाकी जो स्ट्रांग है उसको अच्छे से स्ट्रांग बनाइए और जो वीक है उसको भी प्लीज प्रैक्टिस करिए, बिकॉज दीज आर वेरी सिंपल टॉपिक्स एंड इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो, राइट. तो ये बहुत स्कोरिंग यूनिट है, इसके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे हैं बोर्ड्स में. इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, बट एवरी ईयर वी हैव सीन द पैटर्न कि एवरी ईयर दे ट्राई टू कवर एंड लिसन केयरफुली ऑल द टॉपिक्स. हर टॉपिक से एक क्वेश्चन तो वो देते ही हैं, चाहे किसी का एमसीक्यू में हो, चाहे किसी का 2 मार्क्स में हो, चाहे 3 में हो, चाहे केस स्टडी में हो, बट दे ट्राई टू कवर ऑल द सब टॉपिक्स. तो आप कुछ छोड़िए नहीं, सब करिए. कुछ स्ट्रॉन्ग कुछ वीक है, दैट्स ओके, बट इसीलिए हमें इतनी छुट्टियां भी मिली हैं. तो अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करिए. ओके, सो जस्ट गो फॉर इट. नाउ फॉर सेकेंड एंड थर्ड मार्क यू कैन गो फॉर फाइनेंशियल मैथ. लर्न ऑल द फॉर्मूले थ्योरी thoroughly. So that is the best tip to score in financial, because financial में students को डर क्यों लगता है, we have very hard very big calculations, right? So practice करिए word problems till end. I would prefer that to score full. but अगर आपको कुछ problem ज़्यादा है calculation में, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला करेक्ट लिखिए. इनिशियलाइज द वेरिएबल्स यूज. व्हाट डज इट मीन कि आप आई क्या होता है, आई की क्या वैल्यू है, एन क्या है, आर क्या है, जो भी चीज़ है, पी है, ए है, जो वॉट एवर इट इज़, इनिशियलाइज करके वहाँ लिख दीजिए. आई की वैल्यू अगर आप निकाल रहे हैं, आप एन का वैल्यू निकाल रहे हैं, वो सब वहाँ लिख दीजिए. आपके मार्क्स पूरे नहीं जाएंगे. आप बहुत अच्छे से सीबीएसई बोर्ड स्टेप मार्किंग करता है. ओके, सो डोंट गो फॉर दैट कि हमारा फुल मार्क्स चला जाएगा लास्ट स्टेप में. लास्ट स्टेप के ही मार्क्स जाएंगे फिर आपके. तो इतना काम आप करिए, आप करेक्ट फॉर्मूले याद करिए, आप इनिशियलाइज करेक्ट करिए, आप आई की वैल्यू निकालना सीखिए अच्छे से, एन की वैल्यू निकालना सीखिए, अमाउंट जो भी थ्योरम कोई क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए अच्छे से, तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे आपको. सो टॉपिक्स दैट वी हैव इन फाइनेंशियल इज परपेचुइटी, सिंकिंग फंड्स, EMI and amortization. Amortization, please do it on a safer note, students. It may come, though it is not written in the syllabus. Depreciation, rate of depreciation, CAGR, effective and nominal rate. So these are the topics which we have. Rate of returns भी आप कर सकते हैं, right? But these are the important topics which every year again these are covered every year. If I'm saying, you can see the PYQs, you can see the sample papers. आपको सब में कुछ ना कुछ एक एक टॉपिक से मिलेगा. अगेन इट्स अ बिग यूनिट, आपको 15 मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो डेफिनेटली आपको 10 to 12 मार्क्स स्कोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से याद किए हैं, बिकॉज आधे क्वेश्चन में सिर्फ सब्सटीट्यूशन रह जाता है स्टूडेंट्स. ओके, एंड यू ऑल आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो आपने काफ़ी कुछ कॉमर्स में, दैट इज इन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो यू नो. ओके, सो गो फॉर इट. नाउ कैलकुलस जो स्टूडेंट्स को काफ़ी हार्ड लगता है, so I have divided into 2 days. For 2 days के according में I have given you the topics. You can divide it this way and get it done. तो हम start करेंगे differentiation में. उसमें आप देखिए ये जो regular वाले हैं आपके topics, इन पे आप कम फोकस करिए. लॉगरिथमिक इज इम्पॉर्टेंट, आई नो, एक्सपोनेंशियल इज इम्पॉर्टेंट, आई नो, बट उससे ज़्यादा फोकस आप इन पे करिए. फर्स्ट पार्ट से एक क्वेश्चन आएगा, बट एप्लीकेशन से डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कवर more questions, more numbers I mean. So please focus more on that. But that is true कि अगर आपको first part नहीं आएगा तो आप application में भी कैसे derivative निकालेंगे. I understand that point, but don't do so very complicated questions. Okay, just make it कि आपको simple concept समझ में आए. ज़्यादा tough questions differentiation के नहीं आएंगे. Applications बहुत अच्छे से करिए. आपके में रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजर है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा एंड इकोनॉमिक एप्लीकेशंस आल्सो. Do these topics very well. Rate of change of measure 2 marks तक आता है, 1 या 2 में. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगेन 2, 3, 4 सब में आता है. टेंजेंट नॉर्मल अगेन मोस्टली 2 मार्क्स और 1 मार्क में आता है. मैक्सिमम मिनिमम गोज फॉर 4 to 5 मार्क्स. प्लीज प्रिपेयर वेल. इकोनॉमिक एप्लीकेशंस 2 मार्क 3 मार्क्स में है, सो प्लीज प्रिपेयर देम वेल. इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी आप सेम डे कर सकते हैं, सो उसमें भी ज़्यादा टफ क्वेश्चंस मत करिए, राइट. डोंट डू वेरी टफ क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा हार्ड. पार्शियल फ्रैक्शन इज इम्पॉर्टेंट, बाई पार्ट्स इज इम्पॉर्टेंट, सब्सटीट्यूशन करिए प्रैक्टिस.
but not very tough questions. Okay, now we come to the 5th मार्च को हम क्या कर सकते हैं. So 5th मार्च को हम कंटिन्यू करेंगे कैलकुलस से. सो डेफिनेट इंटीग्रल नाउ यू विल स्टार्ट प्रॉपर्टीज करेंगे. इसमें प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. देन उसमें एप्लीकेशंस में एरिया अंडर कर्व्स है. इकोनॉमिक एप्लीकेशन में यू हैव प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस, हाउ टू फाइंड कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन. Producer surplus, consumer surplus, again formula based topic hai. Do remember the formula and then go do it. Then differential equations, the last chapter of calculus, that is order and degree उसका formation कैसे करना है, solving कैसे करना है. Only variable separable form is given in the syllabus. But safer note पे आप please integrating factor के भी questions करिए from linear differential form of solving, क्योंकि बोर्ड के सैम्पल पेपर में we had an MCQ last year. Okay, so we never know if it can come or not, but safer note पे please do it. Then growth and decay model is again important. Okay, इस पे case study आराम से बन सकता है. 5 marker, 3 marker, any question can come from this. This is again word problems को अच्छे से practice करिए. Again एक set pattern है इसमें, and I have uploaded a very good video on this. So do study it. आपको लगेगा अरे ये सब questions तो same है. Okay, so please study that and then do it. So you are done with all the units now. So what to do for the next 2 days? So sample papers करिए जितना आप कर सकते हैं. At least sample papers try करिए. 5 sample papers to be done in 2 days. आप अगर रोज करते आ रहे हैं, so don't sit at one place and do it. अगर आप confident हैं तो take exposure to as many questions as possible. Right? Try to revise the topics which were weak for you in these 2 days. Try to memorize and write the entire syllabus formula list yourself now. अब आप रोज थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं. Try to memorize. First chapter में कितने फॉर्मूले थे, सेकंड में कितने, आपको कितने आते हैं. Try to sit at one place, close your eyes and try to memorize it so that आपका formulas perfect हो जाए. And resolve the question which you marked as hot and tricky. So this is what I have to say. I hope you all will score very well in the exam. So all the best for your exams. Prepare well. If you have any queries, you can send me anytime. I'll definitely try to clear them, all your doubts. So all the best to everyone for your exam. Right? So please do like and share.